to be a bit today's session is going to be a bit descriptive as well as derivative type, in which we are going to derive around two derivations back to back, and after that we are going to summarize what we have done up till now for solving problems on the concept of magnetism. Okay, the first very topic for today's session is a concept of magnetic dipole magnetic dipole moment magnetic dipole moment of a revolving इलेक्ट्रॉन. अब थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है आप सबका हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, यस और नो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद है सबको, किया है करके? यस Yes. यस सर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बेस लेके इस डेरिवेशन को डिराइव करने वाले हैं. सो एज द कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में एक उसका न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को वो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो नाउ. सो लेट अस कंसीडर अ न्यूक्लियस in the center which is positive charge, and let us consider a electron which is revolving in a circular path with a constant velocity called as what, let us say v. तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन which is revolving at a constant velocity, and this is the path in which the electron is revolving. This is your center nucleus, and from the mid of the nucleus to the orbit is the radius of the electron. Okay, so this is the generalized diagram of an electron revolving around a nucleus. Okay, so an atom consists of a positively charged heavy nucleus around which a negatively charged electron is constantly revolving in a circular orbit. ये great point है. So we have got a heavy charged nucleus around which the electron is by default revolving. Now let us concentrate on the concept of uniform circular motion that we have learned in the previous sessions of our physics paper part 1. Okay, now please recall that this electron of negative charge performs a uniform circular motion. Am I right? This electron is performing यस a uniform circular motion around a stationary nucleus. This is a stationary nucleus with a revolving time period called as what, let us say t. So I'll give a nomenclature over here now. What I'll do, I'll say, let us say t is called as period of revolution. Period of revolution. Okay, t is called as what, period of revolution. उसके बाद में let us say r is called as what, radius of the orbit. Radius of the orbit of revolution of electron. Orbit of revolution of electron. Okay, and let us say v, the most important, it is called as, let us say, orbital velocity. Orbital velocity. Now can anyone tell me what is the formula for t in terms of v that we have learned in simple, a uniform circular motion? T equal to 2 pi r by v. Correct, एकदम correct. We have a concept over here that in general
we have got the status of velocity is equal to, it is 2 pi r upon t. So from this particular expression, upon t. I can say that the value of t is equal to कितना 2 pi 2 pi r r by v. upon v. V. अगर सर ये यहाँ पर करंट ही जनरेट होगा ना? this approach is with respect to what? Uniform circular motion. If I want the same approach to be commented in case of this magnetism, how can I go for it? I can say this is the actual formula, but in terms of magnetism, how can I propose it? I can say period of revolution. Period of revolution that is nothing but what? T is equal to circumference. Circumference मतलब कितना होता है आपके पास? 2 pi r 2 pi r. 2 pi upon r. velocity called as what? V. Orbital velocity. So in short, period of revolution that is called as what? T is equal to circumference 2 pi r upon velocity called as what? T. मतलब घूम फिर के हमारे पास यही फॉर्मूला आता है, that is what? T is equal to 2 pi r upon V is the authentic formula. Okay, ये हो गया आपका point number 1. Let us concentrate on point number 2. Circulating current. Okay, circulating current. Circulating current is given by the formula. Circulating current I is equal to Q by T. मतलब E by T हो जाएगा. correct. It is now in this case it becomes what? E upon T. E by t. Okay, it becomes E by T. But what is the status of T over here? It is nothing but 2 Time pi period. r upon V. EV upon 2 pi r मिलेगा. So that Upon 2 becomes pi r. current I is equal to, it becomes E upon 2 pi r upon V. So I can write this in the form of EV, correctly said, upon kitna 2 pi r. यार. So in Yes. short, I got the value of I is equal to EV upon 2 pi r is nothing but equal to I. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, पड़ाव नंबर 2. ये था आपका पड़ाव नंबर 1. ओके, इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है डेरिवेशन के फॉर्मेट में? एनी डाउट अप टिल नाउ? नो नो सर। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन. यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी अपोजिट डायरेक्शन. यस सर, समझा. ओके, इसका एक स्नैपशॉट ले लो. वील गो विद द नेक्स्ट पॉइंट. Done, sir. डन सर. Done. हो गया. डन सर. So अब तक हमने कौन से एक्सप्रेशन देखे हैं. What we have seen the value of T is equal to, it becomes 2 pi r upon V. ये एक एक्सप्रेशन हो गया. And what was the another formula? Current I is equal to EV upon 2 pi r. 2 pi r. ये आपका हो गया दो फॉर्मूले that we have seen just now. Now as someone has asked me the concept of current direction, let us go with the same concept just now. That magnitude of the magnetic moment associated with circulating current is given by, let us go with that point, magnitude of magnetic moment associated with circulating current is given as, so this formula we already know, it is m0, magnitude of magnetic moment, m0 is equal to current into area. Yes.
अगर ये करंट इनटू एरिया है, आपका करंट का फॉर्मूला कितना है, ईवी EV upon 2 pi r. बाई आर, कॉमन विथ एरिया कितना है आपके पास, Pi r square. पाई स्क्वायर स्क्वायर। तो आपका ये मैचिंग टर्म और ये मैचिंग टर्म कैंसिल, एक मैचिंग और यहाँ का एक मैचिंग टर्म कैंसिल। What is ultimately left out with you? You are left out with EVR by 2. EVR by 2. correct EVR upon 2। ये आपका हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटिंग करंट। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m0 इज इक्वल टू एवर अपॉन आई मीन EVR अपॉन कितना 2, ऐसा होगा। Yes, sir. Let us go Yes, with sir. some theory aspect, some theory point which is very very essential to know at this particular time is the direction of the current। ओके यही क्वेश्चन था अभी मुझे इसने पूछा था कि सर डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होता है, तो वो हमेशा अपोजिट में होता है। मतलब कैसा, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इनटू व्हाट, प्लेन पेपर। ओके द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इनटू द प्लेन पेपर। नाउ प्लीज मेक अ नोट ऑफ वन थिंग, अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है अपना, इट इज मूविंग इन द व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड हेंस फॉर दैट रीजन द करंट और Opposite current, yes, Clockwise direction में जाएगा. clockwise में जाएगा. yes, it is going to rotate in which direction, clockwise direction। Clockwise. Clockwise. Okay, Sir m naught का डायरेक्शन into the paper नहीं समझा. into the मतलब it is a concept of centripetal force making the electron to rotate in the given orbit। Getting the point? Sir नहीं समझा No sir. sir नहीं समझा. m naught मैग्नेटिक मोमेंट है ये, बराबर है। Yes. ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, इट इज गोइंग टू exert your centripetal force on the electron E, which is making or which is bound to make or which is compulsory going to make the electron to rotate in a circular path and not allowing the electron to go out of the orbit। That's the concept। तो इसीलिए उसका जो डायरेक्शन है, it is towards the center or towards the paper, ऐसा मतलब कहा गया है। Yes. Now, Yes sir समझा. next point, negatively charged electrons। ये एक पॉइंट लिख के रखता हूँ, negatively charged electron is moving in anti-clock। Now, therefore, leading current or in short current, leading current to rotate in what, clockwise। ओके ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके ये पॉइंट भी खत्म हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों करना है देखेंगे, पहले करके देखेंगे क्या होता है। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Sir momentum मिल जाएगा. जी क्या, Momentum मिलेगा ना sir. करेक्ट 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 एकदम करेक्ट। सो इट बिकम्स m0 इज इक्वल टू E अपॉन 2, मैंने E को सेपरेट किया है, अपॉन 2 इंटू m सफिक्स E इंटू m सफिक्स E इंटू V इंटू R। ओके V इंटू R। Yes, अभी sir. चेक कीजिए, ये आपका जो m सफिक्स E इंटू V इंटू R, Angular momentum होगा. Angular momentum है. ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग Revolving electron. Of electron revolving in orbit. So it is what, angular momentum of electron revolving around nucleus, around nucleus।
अराउंड न्यूक्लियस। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, बिफोर क्या होगा वो देखने से पहले आप एक बार इसका स्नैपशॉट लीजिए। विल गो विद द नेक्स्ट। Done, sir. ग्रेट। ओके, सर यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट है वो राइट हैंड थंब रूल से आएगा ना? सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से आएगा ना? थंब से भी आप उसको बोल सकते हैं। Yes. करेक्ट, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, उससे भी आप उसको बोल सकते हैं। मतलब द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उससे भी आप उसको बोल सकते हैं आप। बट फर्क इतना ही है कि थंब रूल से अगर आप देखते हो तो सब आपके डायरेक्शंस बाहर जाते हैं, Yes. Yes. समझा। ये अंदर की तरफ आ रहा है, इतना ही फर्क है। तो ये आप सिर्फ ध्यान ध्यान दीजिए। सर ऐसे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है तो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। ये एक मतलब फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर बराबर है। मैंने जो एक जस्टिफिकेशन दिया था विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बोला था। वैसे आपने जो जो जस्टिफिकेशन दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो भी एकदम करेक्ट कॉन्सेप्ट। Yes. Going to next point, so we have a concept of m0 is equal to angular momentum is equal to नहीं, ये नहीं था, सॉरी। So what we had, we are going for the a small substitution called as what L0. L0 का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंट। Okay, angular momentum. Angular momentum of what? Of electron revolving around the nucleus. So I can say L0 is equal to, it is mass of nucleus into V into R. Okay, velocity into Yes. radius. ओके, तो मैं इसको ऊपर पुटअप कर सकता हूँ। मतलब ऊपर कहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन था इन द फॉर्मेट ऑफ m0 इज इक्वल टू E अपॉन 2 m सफिक्स E इंटू m सफिक्स E वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये इक्वेशन था। और इसके जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? L0 पुट करूंगा। L0 L0. So I'll get the expression in the format of m0 is equal to E upon 2me into कितना? L0. L0. Yes. I got this expression over here. That's it. अब ये हो गया formula based. Okay, it becomes a concept of formula based. Now, if I want to denote this expression in terms of vectors, okay, because ये आपका m0 जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इसका ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर होगा। और ये आपका जो है L0 वो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब ये भी आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वेक्टर होगा। वेक्टर होगा। तो इसको फॉर्मेट से कैसे डिनोट करते हैं वो ध्यान दीजिए। सो इन वेक्टर फॉर्म, in vector form m0 is equal to E upon 2me m suffix e into L0। अब यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, वो नोट क्या है? ये जो आपका फॉर्मूला है, मतलब इन वेक्टर फॉर्म इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। मतलब m0 वेक्टर m0 इज नेगेटिव ऑफ E अपॉन 2 इंटू m सफिक्स e into L0। अभी ये नेगेटिव क्यों है? Negative sign indicates that orbital angular momentum of electron is opposite to the direction of orbital magnetic moment। ये ग्रिप है इस सर माइंड। नहीं सर। बोलता हूँ मैं, थोड़ा सा लिख के देता हूँ। So negative sign indicates orbital angular momentum of electron। okay, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे था? एंटी था, बराबर है, एंटी क्लॉक था। करेक्ट है?
Yes. is opposite. Is opposite in the direction to the orbital magnetic moment. और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? डायग्राम ये से बताओ ना। क्लॉकवाइज. सर डायरेक्शन डायग्राम से बताना कैसे? यस सर, डायग्राम से. श्योर वही कर रहा हूँ. तो अगर आप पिछला वाला डायग्राम देखते हो, आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, आपके पास यहाँ पे ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से ये आपका हो गया रेडियस, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज. तो ये अगर एंटी क्लॉक है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब ये आपका है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. So in the atom, the direction of the electron and the direction of the magnetic moment both are out of phase with each other. Out of phase का मतलब क्या होता है? Both are opposite to each other. एक क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक है, या दूसरा एंटी है तो पहला वाला क्या है? क्लॉक है. इस तरह से होता है. And it is always that the direction of the magnetic moment is opposite to the direction of the orbital magnetic moment. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन घूमने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है? तो वो जो फील्ड है वो आपकी जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये उसका मीनिंग है. ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ. यस सर. सर Yes, करंट sir. में जाएगा ना? सॉरी, करंट के डायरेक्शन में जाएगा ना? it will be in the direction of the current, because of course electron के opposite में आपका current flow होता है, and for that Current, reason yes. the direction of the current and the direction of the magnetic moment both are in the what? Same direction. सेम Same डायरेक्शन. direction. Okay, सर तो एंगुलर मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा ना? sorry, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है दोनों का सेम रहेगा ना? yes, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. सर Yes, sir. ई पे बार क्यों नहीं डाला? क्या कहते हैं? ई पे बार क्यों नहीं आया वेक्टर फॉर्म? ई पे कहाँ पे? ये वाला? यस सर. ये ई का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट? चार्ज है, चार्ज. चार्ज आपको स्केलर मतलब क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड देता है, आपको वो डायरेक्शन नहीं देता है. स्केलर है वो, स्केलर क्वांटिटी. वही वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं देता है. इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए यहाँ पे मतलब बाहर नहीं आया है. whereas momentum, both the momentums gives you what? Direction as well as what? Magnitude. मैग्नीट्यूड. Okay, इसका एक सर स्नैपशॉट ले लो. लेकिन आपने तो बोला, सर आपने बोला चार्ज क्लॉकवाइज जा रहा है सर, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट. हाँ, मैं तो चार्ज है ना, वो चार्ज तो आपका मतलब फ्लो होते रहेगा ना आपका. जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वैसे आपका चार्ज तो मतलब फ्लो होगा ही ना. हाँ ओके सर, समझा. ओके, इसका एक स्नैपशॉट ले लो. विल गो विद द नेक्स्ट. Done, sir. नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक छोटा सा डेफिनेशन है गायरोमैग्नेटिक रेशियो करके. कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? सर M/L को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं. ओके, एंड उसका वैल्यू कितना होता है मुझे आप बता सकते हैं आप? सर E/2m. E/2m. Very good. And its value, can you tell me? 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. Great. Very good.
करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, द रेशियो of magnetic dipole moment with angular moment or let us say angular momentum of revolving electron is called as gyromagnetic ratio. इस गायरोमैग्नेटिक रेशियो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये है, जैसे आपने करेक्ट कहा, इट्स अ रेशियो ऑफ m0 upon L0, that is nothing but we can also say it in the form of E charge upon 2m0 Yes. me, sorry, and which is always equal to a constant. ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं होता. So this value becomes in the format of 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg. Coulomb per kg. Okay. Clear point एकदम ये. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. विल गो विद द नेक्स्ट टू डेफिनेशंस. आपका ये टॉपिक हो चुका है क्या क्लास में पहले, Yes, sir. Entrance में हुआ था ये चैप्टर. एंट्रेंस में? ओके. आपका ये टॉपिक हुआ है, मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुआ है क्या? Yes, sir. Magnetic intensity. Can anyone define what is the meaning of Magnetic moment per unit volume. Per unit volume. Yes. Great. Okay. So next point जो है, वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. So as you correctly said, magnetization nomenclature इसका क्या होता है? m suffix z is equal to what? Net magnetic volume upon, सॉरी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये वॉल्यूम नहीं होता है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. सो इफ आई वांट टू डिफाइन, मतलब इसका अगर मुझे स्टेटमेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई गो फॉर द स्टेटमेंट पार्ट? Net magnetic moment per unit volume. वही है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मैग्नेटाइजेशन Magnetization. Standardization. गिवन सैंपल. सो इसको अगर हमको मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है तो m सफिक्स z मैग्नेटाइजेशन है इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट m नेट अपॉन टोटल वॉल्यूम. सर कैसे मैग्नेटाइज होता है वो बता नहीं पा. कौन सा सब्सटेंस कैसे मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक में? वो एक आगे कॉन्सेप्ट है, मतलब
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो Yes. वहाँ पे वो डिस्कस हो जाएगा, Yes, yes. चलेगा? Yes, sir. ओके, ठीक है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस mz? इसका डायमेंशन कितना आएगा? वॉल्यूम है, उसके बाद सर एल रेस टू माइनस टू टी रेस टू वन आई रेस टू वन एल रेस टू कितनी? माइनस Minus टू one. एल रेस टू माइनस टू L raised to minus one. माइनस वन आएगा, Minus one. माइनस I वन, raised to one. m जीरो, M raised to zero. t टी जीरो, रेस टू I raised to I one. one. i वन. वेरी करेक्ट. ये ओके, सो इसका डायमेंशन, मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन है L इनवर्स m0 t0 i1. ये सिंपल आपका मतलब एक डायमेंशन है, सिंपल डायमेंशन. अभी हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हैव यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सैंपल? No. हाँ, तो मुझे वो क्या आप बता सकते हो कि वो उसका अल्टीमेट फॉर्मूला कितना आता है? सर रिपीट करो ना एक बार. मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सैंपल, ये आपने मतलब पढ़ा है क्या? No, no. नो No, सर sir. ठीक है, there is something which I can discuss with you now. Okay, so magnetization of a paramagnetic sample is मैग्नेटाइजेशन. आप जो बेटा बोल रहे थे ना कि कैसे मैग्नेटाइजेशन होता है करके, ओके, Yes, sir. Yes. एक मैथमेटिकल फॉर्मेट चेक कीजिए. सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेट है, थियरी बाद में देखेंगे. हाउ टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. So magnetization of a paramagnetic sample is, point number A, directly proportional to the external magnet or magnetic field. Okay, ये हो गया point number 1. And point number B, inversely proportional to the absolute temperature. To the absolute temperature. Inversely proportional to the absolute temperature. So as per the point number 1, mz directly proportional to external field, proportional to the external magnetic field, this B external, and mz is what? Inversely proportional to what? टी टेम्परेचर Temperature. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. We'll go with the next point. Done, sir. Done, sir. डन सर. So now हमने क्या क्या देखा था कि हमने देखा था mz is directly proportional to external field B external, and mz is directly proportional to, sorry, inversely proportional to what? Temperature, absolute temperature. Absolute temperature. तो ये अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? mz mz is directly proportional to b by t. B external upon कितना? T. If I want to get rid of this proportionality sign, I have to multiply with the constant. So my mz value becomes equal to C b in, by t. yes correct, B external upon कितना T. ये आपका इक्वेशन खत्म हो गया. Okay, so magnetization is equal to external
मैग्नेटिक फील्ड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कॉन्सेप्ट है। अभी ये सी का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट। Curious constant. बहुत बढ़िया, क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट तो खत्म हो। यस अब एक दूसरा डेफिनेशन जो है वो है कॉन्सेप्ट सर ऑफ सी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रहता है? इट्स अ क्यूरियस कांस्टेंट है वो, तो हर एक के लिए वो मतलब अभी जैसे कि अगर आपने एक कोई तो मटेरियल लिया तो उसके लिए तो वो कांस्टेंट रहेगा, बट इफ द मटेरियल इज चेंजिंग देन इट हैज टू बी चेंज। ये अपन लोग जो कर रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कर रहे हैं, यस सर, समझा। तो फेरो के लिए वो अलग होगा। ओके, नाउ यस सर। नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी? Intensity of magnetic field at a given point. करेक्ट, ओके, ग्रेट, अफलातून एकदम ये। Force experienced by unit pole strength. sir, magnetic intensity is magnetic induction at a point divided by permeability of medium. ये आप बेटा टिपिकल टेक्स्ट बुक की भाषा बोल रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे हैं। करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसको एक अगर एकदम आसान लैंग्वेज में अगर मतलब अपने ओन वर्ड्स में बोला Sir, force per unit pole strength. फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, करेक्ट है, Pole एकदम strength. करेक्ट है, एकदम करेक्ट। B by mu. गिव मी 2 minutes, आई विल जस्ट लॉग इन फ्रॉम माय अदर डिवाइस, इसका बैटरी खत्म हुआ है। ओके, सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक ही पॉइंट पे आता है ना, तो कन्वर्ट हो जाता है ना म्यू जीरो टाइम्स से। सॉरी वापस बोलिए। सर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो एक ही पॉइंट पे होता है, पर फ्री स्पेस की वजह से म्यू जीरो टाइम्स कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो उसका फॉर्मूला ही है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर टाइम्स वो कन्वर्ज हो जाता है। यस सर। करेक्ट है। अभी हम लोग वही डेरिवेशन लेने वाले थे। आपको ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेरिवेशन आता है क्या? छोटा सा 4 लाइन का डेरिवेशन। No. You No, sir. have No, you sir. done the derivation of B is equal to mu into H? ये आपने किया है क्या? नो सर, नो। No, sir. No. No. Okay, ठीक है। Let us go with the next point. एक अपना डेरिवेशन बाकी है जो कि है अपना मैग्नेटिक इंटेंसिटी H करके। ओके, सो आई कैन से Sir,
हाँ बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी और एच के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? ये डेरिवेशन करके आपको बताओ चलेगा? हाँ यस सर। ये इसी का ही मतलब ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसी का ही ये एक मतलब आंसर है ये, ठीक है। यस सर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज आई जस्ट पहले मैं इसको बोलता हूँ मैं क्या है करके, जो मतलब नॉर्मली आपके एच सी वर्मा में दिया हुआ है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी यूज इन डिस्क्राइबिंग मैग्नेटिक फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मतलब एक डेफिनेशन है। दूसरा ये है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट कैन ऑल्सो बी टर्म एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बट जब हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, देन द स्ट्रेंथ कैन बी और स्ट्रेंथ हैज टू बी गिवन इन द वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग प्रपोज करते हैं, देन आई कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट can be given in terms of vector quantity and it is called as a concept of what magnetic intensity. okay, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके दो डेफिनेशंस है, एक है एच सी वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले एनसीईआरटी का क्या डेफिनेशन है वो चेक करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एज आई सेड इज द क्वांटिटी यूज इन डिस्क्राइबिंग मैग्नेटिक फिनोमेना in terms of their magnetic field. okay, magnetic intensity is quantity used in describing magnetic phenomena in terms of their magnetic field. in terms of their magnetic field. और इसको और एक फॉर्मूला क्या है या मतलब डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेंथ of magnetic field at a point can be given in terms of vector quantity. okay, and it is also called as a concept of what? Magnetic intensity. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के आपके पास ये दो फॉर्मूले, इसमें से आप कोई भी मतलब बाय हार्ट कर सकते हो या आप कोई भी इसको मतलब याद रख सकते हो, ठीक है। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट। इसी का ही मतलब कंटिन्यूएशन है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी it is in the format of what? H. okay, magnetic intensity is in the format of what? H. and anyone tell me what is the meaning of B called as? B का मतलब क्या है, मुझे कोई बता सकता है सर क्या? आवाज कट हो रहा है। सर आवाज ब्रेक हो रहा हेलो वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। एक मिनट है, चेक करना।
Hello, am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Okay. तो S का मतलब होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B कॉल्ड एज? B का Magnetic मतलब क्या है मुझे? मैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट. अब मुझे जो डेरिवेशन करना है उसमें क्या है? आई एम गोइंग टू रिलेट इंडक्शन विथ इंटेंसिटी. I am going to relate the concept of induction with what? Intensity. So सर दोनों का magnetic मीनिंग बताओ ना, इंडक्शन का, इंडक्शन हाँ, अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है, अब लेट अस से सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी पावर भी होता है, पावर. यस, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. ओके, तो अगर मैंने एक यूनिट एरिया लिया, इफ आई टेक अ यूनिट एरिया ओवर हियर, इफ आई टेक अ यूनिट एरिया ओवर हियर, तो इस यूनिट एरिया में कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये जो दिखाता है, या ये जो काउंट है, या ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं. यूनिट नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंटेंसिटी. सर वो अब तो मैग्नेटिक इंडक्ट क्या हुआ? सर फ्लक्स अपन एरिया तो इंडक्शन भी होता है ना सर. इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका दूसरे मैग्नेट के ऊपर कितना असर करता है, या कितना इंटेंसिटी या कितना प्रभाव करता है, ये जो रिकॉर्ड है या ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं. एक सिंपल बात देखिए, आपके पास ट्रांसफार्मर होता है. ओके, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब क्या है? यहाँ पे कॉइल में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनने वाले हैं, वो कितने लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल में आपके लिंक होते हैं, ये जो पावर है या ये जो काउंट है, इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक कौन सा? इंडक्शन. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इंटेंसिटी. यानी इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नेट है या आपके जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कितने जाके ऐड होते हैं या कितने उसके साथ लिंक होते हैं, ये जो पावर होता है, इसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है, ओके, और दोनों के हम लोग ने मान लीजिए नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल हम लोग ने सामने सामने लाए, तो दे गेट रिपेल ईच अदर. ना वो रिपेल क्यों होते हैं? बिकॉज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, और उसका जो एक मैग्नेट होता है, दूसरा मैग्नेट उसको रिपेल करता है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक इंडक्शन. विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आपका मैग्नेट जो है वो रिपेल किया जाता है. ऐसा उसका मीनिंग होता है. ओके, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है ये. सर तो लास्ट ईयर वो फॉर्मूलाज डिराइव किया था ना, म्यू 0.4π2m/x3, वो सब, वो बी का हाँ, हाँ. कि एच का? बी का है वो? बी का है वो. यस सर, समझा. सर फ्लक्स अपन B का है. एरिया का फॉर्मूला होगा फिर. कौन सा? फ्लक्स अपन एरिया, नंबर ऑफ हाँ, लाइंस, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा ना वो भी. वो मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने जो आपको अभी मीनिंग बताया है ना मैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकली मैग्नेटिक इंडक्शन. आपने मुझे प्रैक्टिकली पूछा ना कि क्या है करके, मतलब बताओ करके. Yes, sir. तो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे वर्क होता है या क्या होता है? एक कॉइल से दूसरे कॉइल पे जब आपका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंक हो जाते हैं, तो उस लिंकिंग को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. मतलब बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन द अदर
कॉइल इज नाउ गोइंग टू बिकम अ टेम्पररी मैग्नेट, ऐसा उसका मीनिंग होता है। क्लियर कंसेप्ट है ये? सर टेम्पररी मैग्नेट नहीं समझा। टेम्पररी मैग्नेट मीन्स सांगतो, एक मिनट, आपने इलेक्ट्रिक बेल का कंसेप्ट पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में। यस यस सर। हाँ, तो हम लोग जब बेल मतलब जब बटन ऑन करते हैं तो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा हैमर एक रहता हथौड़ा है। होता है, एक हैमर होता है, हथौड़ा होता है, यस। और यहाँ पे सर आपका उसका वो एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ओ माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी, वो तो कम्प्लीटली डिलीट हो गया वो। ठीक है, आई आई डू इट वंस अगेन, जस्ट वेट। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कॉइल वाइंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। ओके, वी गो फॉर अ परमानेंट मैग्नेट ओवर हियर, ऐसा वाला। अब जब हम लोग इसमें से करंट पास करेंगे तो दिस करंट इज गोइंग टू फ्लो इन द कॉइल, एंड जब करंट फ्लोज इन द कॉइल और करंट व्हेन फ्लोज इन द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बराबर है? यस सर। This magnetic field which is going to be produced over here is been मतलब attracted by this magnet. अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब क्या होता है कि ये जो आपका वायर है वो आपका टेम्पररी मैग्नेट एक्ट करता है। Now this wire is going to act as a concept of temporary magnet, and because of this temporary magnet क्या होता है, ये आपका जो हैमर है वो यहाँ पे जाके वो ऐसा उसके ऊपर मतलब इट फॉल्स ऑन द गिवन गॉन्ग, ऐसा होता है। ये है Yes. आपका टिपिकल वर्किंग ऑफ अ यस सर। बेल, डोर बेल। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके बाद में आपने और एक क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा, जस्ट फॉरगेट इट। एक आपने कुछ एंट्रेंस का एक क्वेश्चन पूछा था ना? हेलो, यस सर, फ्लक्स बाय एरिया। हाँ, उसमें क्या था बेटा, क्या आपका मतलब डाउट था उसमें? सर वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला या मैग्नेटिक इंडक्शन। वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है वो, फ्लक्स अपॉन यूनिट एरिया। यस सर सर। लास्ट ईयर में टेक्स्ट बुक में बी बार करके दिया था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था यस सर। यस सर। नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूजन। इसका आपका एंट्रेंस के क्वेश्चंस हुए हैं क्या? यस सर। यस यस। हुए हैं ना? यस सर। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसमें जो जो फॉर्मूलेस हमने देखे हैं एक बार इसका रिव्यू लेते हैं, ठीक है? वील जस्ट हैव अ रिव्यू ऑफ अ क्विक फॉर्मूलास दैट व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर अप टिल नाउ। एक बार मुझे बताइए, करंट सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो टॉपिक था उसमें हमने कौन से फॉर्मूलेस देखे थे? हम लोग ने फॉर्मूला देखा था बी का, इंडक्शन का देखा था। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी इंडक्शन का? इट वाज म्यू 0 I I a square upon 2 a square plus x square raised to 3 by 2 2 कॉमन विथ व्हाट, a स्क्वायर प्लस square raised to 3 by x 2 स्क्वायर रेज़ टू कितना 3/2। ओके, करेक्ट। ओके, यस अभी इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको रेडियस दिया है, ओके, यू आर गिवन विद द फ्रीक्वेंसी, and you have to find out the value of m. Can you find out? I repeat once again, मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं आपको। एन इलेक्ट्रॉन, ये अभी का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने अभी देखा था। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
an electron in an atom revolves around the nucleus. सर EF पे आता है, EFA फ्रीक्वेंसी का अगर टर्म लिया EF क्या था है? EFA, A मतलब एरिया. एरिया. ओके, करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये इन द ऑर्बिट, ये कहाँ कौन सा एग्जांपल है? हाँ, ये है ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग. ये आर्मस्ट्रॉन्ग में क्यों दिया? बिकॉज रेडियस इज क्वाइट स्मॉल, इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया गया है. कैलकुलेट magnetic moment. Okay, if frequency f given to you is 6.8 into 10 raised to 9 and the value of E given to you is how much? 1.6 into 10 raised to minus 9. 19 कूलम. हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि how am I going to convert this radius जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है, इसको मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? into 10 raised to 10 raised to minus minus 10. करेक्ट, एकदम करेक्ट. सो सॉल्यूशन, तो अपना जो रेडियस है which is in the form of 0.53 Armstrong, it becomes in the form of 0.53 into 10 raised to कितना? minus 10. करेक्ट कंसेप्ट है ये आपका हो गया, मीटर्स में हो गया. meters. अब मुझे बताइए आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 6.8 into 10 raised to 9, मतलब ये मतलब ये मेगाहर्ट्ज में दिया है. ओके, मेगाहर्ट्ज में दिया है. सो इट इज 6.8 into 10 raised to 9 मेगाहर्ट्ज. अब मेगा मतलब कितना होता है? 10 raised to 6 की 10 raised to 9. 10 raised to 6. 10 raised to 6. 10 raised to 10 raised to 9. सर 10 raised to 6 रहता है. yes sir, 10 raised to 6. हेलो, am I audible? yes, Yes sir. Yes, sir. Yes. Okay. So it is 6.8 into 10 raised to 9 megahertz. अभी मेगा मतलब कितना होता है? 10 raised to 6 की 10 raised to 9. 10 raised to 6. 10 raised to 10 6. raised to 6. Raised to 6. 6. तो 6 और ये 9 कितना हो गया? 15 हो गया. 15. मतलब आपका f is equal to 6.8 into 10 raised to what? 15 hertz. ये आपका वैल्यू बन गया. अब ये हो गया आपका, मतलब फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो गया. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है m. m मतलब क्या फाइंड करना है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है. तो एनी सजेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज ओवर हियर? जैसे कि आपने, हमारे पास एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू i इंटू a. ये फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, बराबर है? Yes. एंड i का फॉर्मूला कितना है हमारे पास? i इज नथिंग बट व्हाट? e इंटू f E इंटू एरिया का मतलब कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. IR square, yes. IR square. दैट इज इक्वल टू, आपका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना आपके पास है? 6.8 इंटू 10 raised to 15. पाई मतलब होता है 3.14, इतना ही लिया मैंने. और रेडियस जो है आपका है 0.53 इंटू 10 raised to minus 10. Can anyone tell me what is the answer of your magnetic induction?
सर वो रेडियस का स्क्वायर है ना? हाँ रेडियस का स्क्वायर है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ से। What is the answer? Hello. Hello. Yes, sir. आया आंसर? सर कैलकुलेट करें। -19 + 15 आणि -20 ये आता है -20 Sir, 9.596 into 10 raised to -24. -24 हाँ। तो ये Yes, sir, yeah, आपको 9. शायद कितना आया है? 9 पॉइंट कितना 559 है ना? 596 Yes, now. sir, Yes. 5. So latest circuit is 9.6 into 10 raised to -24 ampere meter square. Okay, is the authentic answer. Okay, एक एंट्रेंस का एग्जांपल लेते हैं। एंट्रेंस का एग्जांपल 2019 एंट्रेंस का एग्जांपल है ये। कैन वी टेक एंट्रेंस का एग्जांपल? इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, लेना है आपको? Yes, sir. Okay, so can we go for an entrance example now? Yes, sir. Yes, sir. A coil having an area 2 meter square is placed in a magnetic field
is placed in the magnetic field which charges from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square in the interval of 2 seconds. In the interval of 2 seconds, the EMF induced in coil is answer A 4 volt, B 3 volt, C 1.5 volt, and D 2 volt. ओके, बहुत तगड़ा सम है ये, सॉल्विंग के लिए बहुत इजी है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत तगड़ा है। आपको ई पूछा है यहाँ पे, ई का फॉर्मूला है, आपको चाहिए तो मैं देख के रखता हूँ। ई का फॉर्मूला है एरिया इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम इज व्हाट वोल्टेज। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब आप चेक करो कितना था आंसर। सर 3 वोल्ट आया। सर 3 वोल्ट डी ऑप्शन। एक मिनिट है, एक मिनिट मला करू दे 2 इंटू चेंज इन ये 4 माइनस 1 अपॉन इंटरवल 2 सेकेंड्स है 3 वोल्ट। सो आंसर इज 3 वोल्ट। ये फॉर्मूला को जरा मार्किंग करके रखो। सर फॉर्मूला किधर से है? ये फॉर्मूला आपका आता है वोल्टेज, मतलब एक आपका चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके। ओके, तो उस चैप्टर में करंट कैरिंग इन द कंडक्टर, इस सेक्शन के अंदर आपका ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैन वी हैव अ सेम प्रॉब्लम ऑफ, आई मीन द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम? यस सर। Yes, sir. ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, a coil having 500 square loops. Each of side 10 centimeter. Each of side 10 centimeter is placed normal to magnetic flux with
increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF, मतलब E, is 0.1, 0.5, 1 and 5. सर 1 टेस्ला उधर क्या लिखा? क्या बोल रहे हो? सर 1 टेस्ला की बात कर रहे हैं। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? So I'll just draw the figure for you. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, और a coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter is placed normal to magnetic flux. तो it is placed normal to magnetic flux, ऐसा कहा गया है. सो आपका यहाँ पे थीटा जो है वो नॉर्मल होने के कारण 0 हो गया. यू वांट मी टू गिव यू द फॉर्मूला एटलीस्ट? इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू N कॉमन विथ चेंज इन B अपॉन चेंज इन टाइम, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू कॉस ऑफ थीटा. कॉस थीटा यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपका कितना है? 0 है. 0. सॉरी, थीटा कितना है? 0 है. तो कॉस ऑफ 1 कितना होता है? सॉरी, कॉस ऑफ थीटा 0 जीरो कितना कैसे होता आने है? समझा 1. सर, थीटा 0 कैसे आने समझा? ये इट इज प्लेस्ड नॉर्मल, यहाँ पे चेक कीजिए, इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, ये मैग्नेटिक लाइंस है आपकी. मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये आपका कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को नॉर्मल है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में होगा प्लेस किया हुआ, और अगर ये इसी डायरेक्शन में प्लेस किया गया है तो आपका एंगल जो है, मतलब इफ यू जस्ट रिमेम्बर, हमको एक डेरिवेशन था 11th में ऐसा वाला, जहाँ पे हम लोग ने इस एंगल को थीटा पकड़ा था. तो ये थीटा का Yes, एंगल अभी यहाँ पे समझा. कितना हो रहा है? 0 हो 0 गया. हो रहा है. हाँ, ये 0 हो गया, मतलब कॉस ऑफ 0 कितना हो गया? 1 हो गया. ये मतलब कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. चेक करो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया आपको प्रॉब्लम में. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10 इंटू 10⁻⁻², ये फॉर्मेट में आएगा. सर आंसर 5. 5 आ रहा है सर आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बेटा कसं केलं सांगतेस का जरा? काय काय केलंस ते? एन किती आहे बेटा? and 500. 500. 100. नंबर ऑफ टर्न्स 500. व्हेरी गुड. इंटू डेल्टा बी किती आपल्याकडे? 1 1. 1. ओके, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी 1. डेल्टा टी भी अपना कितना है? 1 है. 1 है. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना अपने पास? 10⁻²m मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर है. ये सेंटीमीटर के कारण मुझे 10 इंटू 10 0.01. बरोबर है, बरोबर है. इंटू किती? हे स्क्वेअर ना? यस. Yes. इंटू किती? कॉस ऑफ 0.
तो इसका कैलकुलेशन करने से आपको आंसर मिलता है 5. 5, yes sir. 5, yes, करेक्ट sir. करेक्ट कंसेप्ट, करेक्ट कंसेप्ट, एकदम करेक्ट कंसेप्ट है. ठीक है, दिस कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैग्नेटिक मटेरियल पार्ट. ठीक है, काही डाउट्स आहेत का कोणाला काय? हॅलो, हॅलो, am I audible? हेलो. Yes, sir. yes sir, yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, so this completes the concept of a magnetic material part. ठीक है, कोई डाउट्स है तो पूछो, and or else we'll wind up the session now.